Hello everyone, good morning. So today we are going to discuss what are all the types of manufacturing. मैंने अपने previous एक shorts में ये create किया था कि what exactly is manufacturing in layman terms. So if you have not watched, you can have a look there. Today we are going to discuss what are all the types of manufacturing. कितने types के manufacturing process होते हैं. Right? So let's move forward. We are going to discuss about the overview of manufacturing types, which I have already explained. Introduction to manufacturing. So manufacturing is actually transforming raw material into a final product or a finished goods, and that will eventually drive economic growth for any country and technological progress. So ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल फाइनली कन्वर्ट होता है एक फाइनल प्रोडक्ट में. फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, let's say you have a raw material steel. So steel ko when it go through some process in industry, it will be finally converted into a product which is called car. So car will be the product that comes out of that process, and it will eventually drive our economy also, and that will be helpful in technological progress for our country. Manufacturing system variations. System differ by production volume, product variety, equipment flexibility, and workflow designed to meet diverse needs. So the different types of manufacturing system जिसकी हम बात कर रहे हैं, so it depends on certain things. For example, production volume. Production going to happen in low quantity or it's going to be in huge, उस बेस पे भी मैन्युफैक्चरिंग डिफर करता है. Then the variety of product, equipment flexibility, and workflow. So these are all, you can say, some parameters based on which this types of manufacturing is categorized. Material processing types. Products can be discrete and countable or undergo transformations, making separation difficult, affecting manufacturing methods. If we talk about manufacturing types overview, key types include, these are all crucial things when we talk about types of manufacturing. So job, batch, mass, process, and continuous manufacturing. These are all some major types of manufacturing which we are going to cover in further slides. Let's move forward. So the first one, which was job manufacturing. Job manufacturing focus on creating unique product tailored to specific customer requirements with high flexibility. तो यहाँ क्या होता है कि you have unique requirement for a product. इसका volume बहुत low होता है, but variations would be very high. Let's say you have a customer who came to you and say, design me a prototype for gearbox of some car. So it is like it's a custom requirement for, it could be let's say XYZ company वो आपको reach out करती है to design that prototype. So XYZ कंपनी के लिए वो प्रोटोटाइप कुछ और होगा, वही कोई दूसरी कंपनी ABC अगर आती है तो उसके लिए वो it would be something different. और यहाँ ये इस कैटेगरी में क्या होता है कि दिस मैन्युफैक्चरिंग हैपन्स इन लो वॉल्यूम. लाइक अब ये जो प्रोटोटाइप का डिमांड आया है, you will first design it, and then if customer agrees, then he will go further for R&D or he may implement it in mass production. उसके बाद का प्रोसेस है वो. So एक, you can say, kind of sample, you are creating a sample for that particular client. So यहाँ पे क्या है कि it would be in low volume but varieties would be very high.
हर एक कस्टमर का अपना अलग रिक्वायरमेंट होगा उस प्रोटोटाइप के लिए। सो ये है कॉम्प्लेक्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट में वेरिएशंस इतने हैं सो इसकी प्लानिंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी। एंड शेड्यूलिंग, so managing unique job sequence require complex planning. It would leading to a longer setup time and higher cost. So these are all interrelated to that. Skilled labor and workshops. So यहाँ पे labor should be very highly skilled, and then you will use some general purpose machine in small workshop or tools room. So anywhere it depends कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो उस पे, इस particular requirement पे. So it needs highly skilled labor and workshops. So this was all about job manufacturing, जहाँ पे एक low quantity में आप एक नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो फॉर योर क्लाइंट. So important point was here low volume and high varieties in this job time, in this manufacturing time. Next is batch manufacturing. So batch manufacturing produces goods in specific groups, balancing flexibility and efficiency for medium volumes. यहाँ पे comparatively जो volumes है वो ज़्यादा होता है as compared to job manufacturing, which we discussed previously. So here goods in specific groups, balancing flexibility and efficiency. Okay, so यहाँ एक important point ये है कि ये इस process में everything gets executed in a batch. So it यहाँ पे वॉल्यूम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. सो फॉर एग्जांपल जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है हियर, लेट्स से कि this whole process is made up for identifying damaged eggs. So they will check, I mean अपने इस पे eggs का बहुत सारा eggs एक साथ रख दिया and it will identify if there is some damaged eggs जिसको आगे नहीं लेके जाना है, so it will just pick it out. So here volume is high. Equipment reuse and setup. Same equipment is used for different products requiring cleanup and setup between batches impacting downtime. अब यहाँ इसका क्या मतलब है कि अब जैसे ये ट्रे फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर करो कि this tray is for identifying like you can say odd man out. So if there is some egg which is not good in quality, ये उसको हटा देगा, it will pick it out. So this tray will not be used only for egg. You can use it for other products as well. Let's say कि कल को आप आइडेंटिफाई करने वाले हो किसी दूसरे प्रोडक्ट को that is not egg. For example, let's say एक कार्टन है, you have a multiple carton of mobile phones जो इसके थ्रू जा रहे हैं. लेट्स से कि कोई एक डब्बा है जो फटा हुआ है या some sticker is missing there, so that can also you can use this for that one also. या लेट्स से एप्पल कि पहले आपने यहाँ से एक्स को आइडेंटिफाई किया जो खराब हो गया है, देन नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू यूज इट टू पिक अप एप्पल्स जो खराब हो चुके हैं. सो सेम सेटअप है बट गेटिंग यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब इसमें क्या होता है कि इट विल रिक्वायर क्लीनिंग. जैसे ये बैच प्रोसेस हुआ, अब मान लीजिए इसमें से कोई एक है कि जो फट गया, यहाँ पे फूट गया, सो उसका क्लीनिंग एंड ऑल उसमें टाइम जाएगा. सो एक बैच प्रोसेस होने के बाद जो दूसरा बैच का प्रोडक्ट आएगा इस पर, उसके बीच में इसका इट मे रिक्वायर क्लीन अप जिससे कि डाउन टाइम इम्पैक्ट होगा. एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स. कॉमन इन बेकरीज, फार्मास्यूटिकल, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, बैच मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट्स मॉडर्न प्रोडक्ट वैरायटी. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. लाइक बेकरी में भी क्या होता है कि यू हैव ए बंच ऑफ ब्रेड्स के पैकेट हैं, तो वो सारे प्रोसेसर हैं, उसमें से
फॉर एग्जांपल कोई ब्रेड का हो सकता है पैकेट है जो प्रॉपरली टैग नहीं है और इट इज़ नॉट प्रॉपरली पैक्ड, सो या कोई प्लास्टिक उसका फटा हुआ है, सो इट विल यूज दैट। और उसमें बहुत जरूर हर बार यही एक प्रोसेस नहीं है कि, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा उसमें से पैकेट है जो खराब है। लाइक दिस देयर आर सेवरल अदर प्रोसेस दैट रन्स विद इन अ फैक्ट्री। कहीं पे है जहाँ ब्रेड की कटिंग हो रही हो, सो वो एक अलग प्रोसेस होगा। सेम गोज विद फार्मास्यूटिकल्स। सो लेट्स से ये कन्वेयर बेल्ट है एंड यू हैव डिफरेंट बॉटल्स जिसमें कि दवाइयाँ डाली जा रही हैं, दे आर गेटिंग फिल्ड विद डिफरेंट टैबलेट्स। सो जैसे ये बॉटल आएगा, देयर विल बी अ प्रोसेस दैट विल फिल दिस जार विद ऑल द मेडिसिन्स एंड इट गोज फॉरवर्ड, इट विल मूव लाइक दिस, इट विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। सो उसका प्रोडक्ट डाल दिया, फिर उसके बाद उसमें कैप लग जाएगा, ऐसा पूरा सेटअप बना रहता है जिससे ये गुजरता है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पे क्या है कि एक एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट आर गेटिंग प्रोसेस्ड इन अ सिंगल बैच। लेकिन ये भी नहीं कि यू आर पुटिंग इनफाइनाइट थिंग्स एट अ टाइम। So in batch there are, you create a batch based on certain number, like एक batch में let's say you are going to move with 100 number of product, 100 bottles मैन्युफैक्चर होंगे एक मेडिसिन के, तो बैच ऑफ 100, सो नेक्स्ट बैच फिर दोबारा 100 का आएगा, थर्ड बैच होगा वो भी 100 का आएगा, लाइक दिस इट गोज ऑन। सो बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, इट ऑफर्स कॉस्ट एफिशिएंसी, product variety, but needs careful planning to reduce downtime and inventory buildup। ये कि कॉस्ट एफिशिएंसी है क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट एक बार में इससे मैन्युफैक्चर होते हैं, सो कॉस्ट एफिशिएंट है। एंड प्रोडक्ट वैरायटी, मैं एक्सप्लेन की एक ही सेटअप है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकता है, बट अगेन केयरफुल प्लानिंग इसके लिए चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जो पैरामीटर आपने सेट किया होगा एग को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेम एप्पल के लिए आप नहीं यूज करोगे, मे बी इफ यू आर यूजिंग फॉर ब्रेड इट वुड बी डिफरेंट, उसमें प्लास्टिक है, इसमें एग में प्लास्टिक नहीं है। सो दीज आर ऑल जस्ट एन एग्जांपल कि इसमें केयरफुल प्लानिंग चाहिए। देन टू रिड्यूस डाउन टाइम, ये जो क्लीन अप का जो प्रोसेस होता है जिसमें डाउन टाइम जाएगा, जितने देर क्लीन अप आप करोगे उस टाइम ये यूज में नहीं है, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डाउन टाइम मीन्स अ लॉट। So this was all about batch processing, sorry, batch or batch manufacturing. Next is mass flow manufacturing। ये वो टाइप है जहाँ पे you create something in masses, in huge number। Mass manufacturing is a system for large scale production using continuous material flow and repetitive task। तो यहाँ पे क्या है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है जिसके लिए एक पूरा सेटअप बना रहता है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, एंड इट एग्जीक्यूट रिपीटेटिव टास्क। एडवांटेज ऑफ मास मैन्युफैक्चरिंग, इट अचीव्स लो यूनिट कॉस्ट, हाई ऑटोमेशन एंड हाई प्रोडक्शन रेट थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो बहुत लो होता है, इसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। लाइक फॉर एवरी स्टेप यू हैव a setup which is running through automation in this kind of process when you are manufacturing it in masses। This is a typical example लें तो used for product with stable demand like automobiles, appliances, packaged food and electronics। So let's say कि एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, टीवी मैन्युफैक्चरिंग। तो एक कंपनी है जो टीवी बना रही है, तो पहला उसका सेटअप होगा जहाँ पे उसके उसका बेस क्रिएट होता होगा, देन अगला प्रोसेस आएगा जहाँ पे उसके ऊपर जो भी वो सिलिकॉन के जो ट्रे लगे रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप स्क्रीन के अगर पीछे जाओगे तो उसमें सिलिकॉन के ट्रे लगते हैं, वो सेटअप होगा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट होगा उसमें लेट्स से वायरिंग का कुछ होगा, तो वायरिंग थर्ड स्टेप में वायरिंग हो रहा है। फोर्थ स्टेप में उसमें कुछ इक्विपमेंट्स ऐड करने हैं, मे बी कैपेसिटर और रेजिस्टर, दोस काइंड ऑफ थिंग्स जो भी ऐड करते होंगे वो सब ऐड हो जाएगा उसमें। एक सेटअप बना है, यहाँ से यहाँ जो इनपुट आया
एक प्रोडक्ट फाइनलाइज हुआ, वो नेक्स्ट वाले प्रोसेस के लिए इसका जो फाइनल प्रोडक्ट यानी इसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट हो जाएगा, फिर इसका आउटपुट होगा वो थर्ड वाले के लिए इनपुट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरा बना हुआ है सेटअप एंड इट कीप्स ऑन मूविंग। तो यहाँ पे ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड इट कीप्स गोइंग। तो यह मास प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। Limitations: mass manufacturing has low flexibility, high setup cost, and costly design changes. तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। रीजन बीइंग क्या है कि जब आप मास में प्रोडक्शन कर रहे हो तो यू हैव क्रिएटेड वन सेटअप, सो वो सेटअप आप चाहते हो कि इट कीप्स ऑन रनिंग फॉर इयर्स। यू डू नॉट डिजाइन इट फॉर विथ शॉर्ट विजन कि आप एक महीना 10 दिन के लिए कर रहे हो, वैसा नहीं होता है। यू क्रिएट दीज काइंड्स ऑफ फ्लो फॉर ए लॉन्ग टर्म, लाइक 10 years 15 years, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एक लॉन्ग टर्म लेके चलते हो, और एटलीस्ट 5 years यू कैन कंसिडर कि एटलीस्ट 5 years तक तो वो कंटिन्यू चलता रहे वो प्रोसेस वैसा। फिर इसका सेटअप कॉस्ट हाई होगा बिकॉज यू आर obviously like you are having so many automation and all those things, so ये पूरा एक सेटअप बना होता है जो इट्स रियली हाईली कॉस्ट। एंड डिज़ाइन चेंजेस भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली। एक बार आपने डिज़ाइन कर लिया, यू हैव इन्वेस्टेड ए गुड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, एक बार सेटअप करने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े दैट विल बी हाईली कॉस्टली, दैट विल बेयर वेरी हाई कॉस्ट। रीजन बिंग, अब नया जो चेंजेस आप करने वाले हो यू हैव टू मेक श्योर कि जो पीछे की, फॉर एग्जांपल यू आर चेंजिंग समथिंग इन हियर इन द थर्ड स्टेप, सो यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ जो चेंजेस कर रहे हो इट विल बी कंपैटिबल विद दिस वन एज वेल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से बन के आया प्रोडक्ट वो पहले सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब आपने कुछ ऐसा चेंज कर दिया जो यहाँ के जो प्रोडक्ट अब आ रहा था थर्ड स्टेप में वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, तो आगे बनेगा ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। सो दीज आर ऑल लिमिटेशंस ऑफ दिस वन। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। Process manufacturing transforms raw material chemically or physically, producing goods measured by volume or weight. तो ये भी कुछ वैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि आप समझो यहाँ पे केमिकली रॉ मटेरियल में केमिकल्स और फिजिकल प्रोडक्शन इन्वॉल्व है। व्हाट हैपेंस कि प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल केमिकली। जैसे आप समझो एक कोई इंडस्ट्री है जो कि कोई केमिकल बनाती है, केमिकल बनाती है और यू कैन से फॉर फार्मास्यूटिकल। तो अब कुछ दवाइयाँ बन रही हैं, उसमें उसका एक अपना एक पूरा प्रोसेस होता है कि किसी जैसे एक दवा के अंदर बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल मिलकर एक दवा को फाइनली बनाते हैं। एवरी केमिकल हैव सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इट्स वेट और वॉल्यूम जो भी होगा था कि उसमें अगर फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कितना परसेंटेज कार्बन होगा। आई मीन कुछ भी हो सकता है ये, not just like carbon is not an example, it will not be a good example, but let's say something like sodium है, some salt, सोडियम कितना परसेंटेज होगा उसमें, सल्फर कितना होगा, इसका इस टाइप का जो भी उसका, नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक केमिकल्स बट जस्ट एन एग्जांपल कि किसी भी केमिकल का कितना कॉम्पोजिशन होगा वो सब यहाँ पे डिफाइंड रहता है, उतना ही होना चाहिए। तो this process manufacturing transform raw materials chemically or it could be physically also, producing goods which is measured by volume or weight. Finally जो प्रोडक्ट बन के आएगा it will be measured either on volume or weight. जैसे अगर कोई केमिकल तैयार हो रहा है उसमें some acid like H2SO4, तो उसका वॉल्यूम और वेट सब फाइनली डिसाइड होगा, उसके बेस पे केमिकल कैसा है। आपने देखा भी होगा कि जब किसी भी दवा के पीछे अगर जैसे कोई सिरप है, सिरप के पीछे आप चेक करोगे
तो इट इज रिटन कि वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही चेक की जाती हैं उसकी प्रॉपर है कि नहीं है। प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैन बी बैच और कंटिन्यूअस फॉलोइंग ए प्रिसाइज फार्मूला और रेसिपी फॉर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। तो वही है जो मैं बताया कि इसमें एक फार्मूला फिक्स है कि जैसे वही बताया सोडियम, अगर सोडियम को एक पर्टिकुलर दवा में कितना डालना है तो वो आपने फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल 2% वेट बाय वॉल्यूम ये आपने फिक्स कर रखा है, तो उतना ही उस पर्टिकुलर केम प्रोडक्ट के अंदर सोडियम का वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए। तो और ये चीज़ इट कुड बी इन बैच और कंटिन्यूअस जो चलता जा रहा है कंटिन्यू, वैसा उस टाइप का प्रोसेस है ये। क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मॉनिटर्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन टू मेंटेन स्ट्रिक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन तो इस पर्टिकुलर केस में कि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इज सुपर इम्पॉर्टेंट। लाइक यू कैन नॉट हैव यू आर क्रिएटिंग लेट्स से पैरासीटामोल, एक दवा है जो आप यूज़ कर रहे हो बुखार के लिए, एंड लेट्स से कि एक केमिकल है जो यूज़ हो रहा है, उसकी वॉल्यूम आपने अगेन कंसिडर NS सोडियम, आई डोंट नो सोडियम यूज़ होता है नहीं होता उसमें, बट एज एन एग्जांपल जस्ट कंसिडर करो कि सोडियम यूज़ होता है एंड इट शुड बी 2% ओनली। सो ये कभी नहीं हो सकता कि आप उसको बढ़ा किसी एक दवा में वो 2% की जगह 3% हो जाए या 4% हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स रिजल्ट वुड बी डेंजरस, वेरी डेंजरस, इट कैन टेक समवन्स लाइफ अगर ऐसा होता है। सो इसमें क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये अब वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें इट इज़ सुपर क्रिटिकल। इट शुड बी मेंटेन स्ट्रिक्टली एंड इट शुड फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो हर एक इंडस्ट्री के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इज वाइटल फॉर प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स लाइक फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो वही जो मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग वाइटल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कि अपने एक पूरा सेटअप बनाए इस पर्टिकुलर टाइप के लिए जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना हो। दे हैड टू adhere to those things which has been set up, एक प्रोटोकॉल बना हुआ है और उसको फॉलो करना ही होता है। तो दैट इज व्हाट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग वाज। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग। Continuous manufacturing uses automation to run operation non-stop, ensuring high efficiency and consistent product quality. तो ये एक ऐसा टाइप है जहाँ पे चीजें कंटिन्यूअस चल रही होती हैं, वो बंद नहीं हो रही हैं। Industry applications commonly used in oil refining, steel production, and chemical processing for large-scale, stable demand manufacturing. Advantage and challenge: offers exceptional efficiency and uniform quality but require high investment and has limited flexibility for changes. तो ऑल्दो ये भी मैंने लास्ट वाले में ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया था, बट फिर भी आपको एक बार और बताएं कि कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग लाइक जैसे आप कंसिडर करो ऑयल रिफाइनिंग का प्रोसेस है, तो वहाँ क्रूड ऑयल आया, क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करना है, देयर में बी सेवरल प्रोसेस दैट हैज बीन डिजाइन कि सर्टेन प्रोसेस वन से गुजरेगा, उसमें से कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे फिल्टर होते होंगे, देन वो फिर सेकंड स्टेप में जाएगा जहाँ से कुछ और फिल्टर होगा, थर्ड स्टेप में जाएगा वहाँ कुछ केमिकल उसमें एड्स होंगे जो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, देन दैट विल मूव टू फर्दर अदर प्रोसेस, मे बी सब कहीं पे उसको हीट किया जा रहा है, फिर कहीं पे उसको थिन किया जा रहा है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड एंड इट हैज टू गो थ्रू इट। सो एक कंटिन्यूअस बना हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन यूज होता है इन सब में, एंड ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज होता है। जैसे IOCL का अगर एक एग्जांपल है, तो IOCL जो इंडिया में ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ ये सब बहुत लार्ज स्केल में होता है और वो प्रोसेस सालों साल कंटिन्यूअस चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। डाउन टाइम इसमें ना के बराबर होता है, बहुत रेयर केस में डाउन टाइम दिया जाता है ऐसे केसेस में।
यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस के लिए भी बहुत कम होते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसका बहुत हाई होता है, वेरी वेरी कॉस्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू चल रहा है। सो नाउ अब इन सबको अगर वी समराइज, सो फर्स्ट वन वाज जॉब मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है चेंजेस के, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, और स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए, और छोटे से वर्कशॉप में आप इसको कर सकते हो। सेकंड, बैच मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे आप प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन बैचेस, इट कुड बी 100,000 और लैक्स, इट डिपेंड्स कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर प्लांट की। सो दैट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग। मास मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे आप मास में इन ए लार्ज वॉल्यूम एज कम्पेयर टू बैच, दिस इज वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग इन मोर वॉल्यूम। देन थर्ड वन इज प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे स्केल बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है चेंजेस की, एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। यहाँ पे नॉन स्टॉप प्रोडक्शन चल रहा होता है विद ऑटोमेशन। सो दीज आर ऑल different types of manufacturing which happens today in factories. Hope you liked it. So next time we will see with some other facts or some other topics related to manufacturing and OT. Till then, thank you. See you next time. Bye.